लैंड रिसोर्सेज। अब हमें पता है कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेजिटेशन, लिविंग एंड एवरीथिंग। Now, India has a land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands. About 43% of the land area is plain, which provides facilitates for agriculture in India. अब आप इसमें देख सकते हैं पाई चार्ट में कि 43% प्लेन्स का है, 30% is of mountains and 27% of plateaus. Mountains account for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers. Mountains की वजह से तो perennial flow मतलब पूरे साल फ्लो रहता है रिवर्स में. Provide facilitates for tourism and ecological aspects. About 25% of the area of the country is plateau region. It possesses rich reserves of minerals and fossil fuels and फॉरेस्ट. अब सबसे बड़ा प्लेट्यू का एग्जाम्पल इज द डेक्कन प्लेट्यू. नाउ लैंड का यूटिलाइजेशन. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. सबसे पहला फॉरेस्ट. सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज बैरन और वेस्टलैंड और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, दैट इज बिल्डिंग रोड्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा. थर्ड, other uncultivated land excluding the fallow land, permanent pastures and grazing land, land under miscellaneous tree crops, groves not included in the net zone area. उसी का एक सब पार्ट कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. अब कल्टिवेबल वेस्ट लैंड क्या होता है? जो अनकल्टिवेट हुआ हो मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स से. फैलो लैंड्स. फैलो लैंड्स आर करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less ईयर दैन 1 एग्रीकल्चरल ईयर. मतलब इसमें हम बेसिकली एग्रीकल्चरल ईयर्स के हिसाब में बात कर रहे हैं. Other than current fallow left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. Net sown area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known for gross cropped area. Now if I ask what is gross cropped area, you should know that area that is sown more than once in an agricultural year is known as an ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. और किसी ने मेरे से पूछा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब उसने वीडियो नहीं देखी है. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. द यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स such as topography, climate, soil types as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometers. Land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. अब हमारा जो पूरा जियोलॉजिकल एरिया है इंडिया का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. पर जो लैंड यूज़ है उसका सिर्फ 93% ही टोटल जियोग्राफिकल एरिया में आता है बिकॉज जो लैंड यूज़ है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का नहीं हुआ है एक्सेप्ट फॉर असम. मतलब सॉरी, फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली. मतलब सिर्फ असम का हुआ है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनका नहीं हुआ है. मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन सर्वेड. अब जैसे POK है वो अभी, और जो चाइना के अंडर भी इंडिया का है वो अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है. नाउ देयर आर 2 charts over here. One is for the general land use categories from 1960 to 1961.
and one is the general land use category of 2008 to 2009. अब हम देखेंगे जो लाइट ब्लू है फॉरेस्ट, दैट इज़ 18.11%. barren and unculturable wasteland is 12.01%. area under non-agricultural uses is 4.95%. ऐसे ही काफ़ी सारे हमारे पास वो हैं. Now let's read. You can take a quick look and do all this. The land under permanent pasture has decreased. How are we able to feed a huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? अब अगर हम pasture land पे देखें तो उसका परसेंटेज कम हुआ है, तो अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, तो उस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए हमें pasture land चाहिए, तभी हम अपनी कैटल को वो करा पाएंगे. Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. अब या तो जो लैंड है उसकी पुअर क्वालिटी या तो एक्सपेंडिचर बहुत है. Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years. अब ये जो लैंड है वो once or twice in about 2 to 3 years are done, and if these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes about 54% of the total reporting area. Now इसमें काफ़ी सारे typical words हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे. एक बार समझिए और फिर उन्हीं को ही याद करिए और इन्हीं को ही यूज़ करिएगा. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. अब जो net zone area है वो हर स्टेट का अलग अलग है. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal, Mizoram, Manipur and Andaman and Nicobar Islands. अब जो फॉरेस्ट एरिया है कंट्री में वो इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. अब जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था उसमें था कि 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट का अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, पर हमारा तो उससे भी कम है. अब पहले 18% अब 22.78% है. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. अब ecological balance के लिए 33% is necessary. The livelihood of millions of people who live on the fringes of the forest depends upon it. अब जो livelihood भी है वो भी forest पे ही depend करती है. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. अब जो वेस्ट लैंड घोषित कर दी जाती है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए यूज़ करी जा सकती है. वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज. अब वेस्ट लैंड कौन कौन से किस लैंड को बोला जा सकता है? रॉकी, एरिड मतलब सूखा, और डेजर्ट तो मतलब और ही सूखा, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एटसेट्रा. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. अब land degradation कब होता है? जब यूज़ तो आप करते जा रहे हो लैंड का, पर उसकी आप देखभाल नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाएगा. Thus in turn has serious repercussions on the society and environment. अब इसका जो consequences वो सोसाइटी पर भी होता है और इन्वायरमेंट पर भी होता है. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू. अब जो लैंड है उस पर तो हमारी जो पास्ट की जनरेशंस हैं वो भी इसी पे ही थी, और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी इसी लैंड पर होंगी. हम लोग चले जाएंगे पर लैंड तो वहीं का वहीं रहेगा ना. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing
आर ऑब्टेन्ड फॉर लैंड। अब जो हमारी रोटी कपड़ा और मकान वाली जो नीड है वो तो लैंड ही सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। aggravated का मतलब होता है increase। तो land degradation का तो human activities ने करा है but natural force aggravated the pace of natural forces to damage the land। अब अगर flood आता है तो अगर हमारे एफॉरेस्टेशन हो तो सॉइल इरोजन इतना नहीं होगा, बट अगर जब डिफॉरेस्टेशन में फ्लड आता है तो वहाँ की सारी सॉइल जितने भी रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वॉश हो जाते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड इन इंडिया। सो मच ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड। और उसका भी 28% बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेटेड एरिया। अब इतने एरिया में भी जो 28% है वो तो फॉरेस्ट डिग्रेडेटेड एरिया है। डिग्रेडेड एरिया 56% ऑफ इट्स वाटर इरोडेड एरिया एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। अब जब सॉल्ट का किसी सॉइल में इंक्रीज हो जाता है तो उसको सॉल्टी सलाइन और एल्काइन डिपॉजिट उसके हिसाब से बोलते हैं। और जब सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसको अल्कलाइन सॉइल बोला जाता है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग to have contributed significantly in land degradation। अब ये सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने भी एक बहुत significant step है towards land degradation। Now we can see the percentage। सबसे ज़्यादा तो water eroded area का है जहाँ पे पानी की कमी है। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। अब जो माइनिंग साइट्स होती हैं जब वहाँ पे जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी माइन कर रहे हो वो चीज़ हो जाती है तो वो साइट ऐसे ही छोड़ दी जाती है और वहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना हार्म होता है एनवायरनमेंट को। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब इन स्टेट्स में, इन विच स्टेट्स? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, माइनिंग से बहुत लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। एंड इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग से हुआ है लैंड डिग्रेडेशन। और स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। अब जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे दे हैव पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। तो इसी वजह से अगर आप ओवर इरिगेशन कर दोगे, अगर आप पानी ज़्यादा डाल दोगे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, जो सॉइल हो जाएगी उसमें पानी भर जाएगा और एक एडिक्वेट अमाउंट ही चाहिए होता है क्रॉप्स के को भी पानी के लिए। बट अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी एंड इंक्रीज इन सैलिनिटी and alkalinity in the soil। The mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। अब जो ये प्रोसेसेस हैं इनको बनाने के लिए उससे बहुत डस्ट रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land। अब अगर जो ये डस्ट है वो जब सेटल करती है लैंड पे तब उस सॉइल की रिटेनिटी मतलब उस सॉइल में जितना पानी जाना चाहिए उतना नहीं जाता, कम जाता है। In recent years, industrial influences as waste have become major source of land and water pollution in many parts of the country। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स एक बहुत बड़ा कॉज है फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बेसिकली ऑफ लैंड एंड वाटर।
There are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Afforestation और grazing मतलब कई लोग ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, कई लोग उसी जगह पे करते रहते हैं. तो अगर हम सही स्टेप्स लें ग्रेजिंग के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए तो लैंड डिग्रेडेशन को कम करा जा सकता है. Planting of shelter belts of plants, control on overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes, and some methods to check land degradation. Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban area. अब इस पार्ट में हमें पता चलता है कि हम कैसे लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास जो हम अप्लाई कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए. नाउ कमिंग टू सॉइल एज अ रिसोर्स. पहले हम सॉइल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सबसे नीचे होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, फिर उसके ऊपर आता है सबस्ट्रैटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, अब उसके ऊपर आता है सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट क्ले, और ऊपर आता है द टॉप सॉइल द अपर सॉइल लेयर. नाउ सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth. Relief, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors of the formation of soil. अब क्या factors हैं? Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation और different forms of life and time. ये सब factors हैं formation of soil के. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. अब ये सब factors हैं जो formation of soil में help करते हैं. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. अब ये changes भी equally important ही हैं because soil consists of organic and inorganic materials. क्यों ये important है? Because सॉइल क्या कंसिस्ट करती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. अब हमें पता है कि इंडिया के पास बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं और इन्हीं फीचर्स ने कंट्रीब्यूट करा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बनने में. द फर्स्ट एलुवियल सॉइल. नाउ इन एलुवियल सॉइल्स ये एक बहुत वाइडली स्प्रेड है और जो नदर्न प्लेन्स हैं वो बने ही एलुवियल सॉइल्स से हैं और ये डिपॉजिट हुए थे हिमालयन में और ये आए हैं उसके रिवर सिस्टम्स के थ्रू इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. और these soils extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. अब जितने भी डेल्टाज हैं उसमें ज़्यादातर ही एलुवियल सॉइल पाई जाती है क्योंकि एलुवियल सॉइल तो रिवर्स के थ्रू ही आती है हिमालय से. The alluvial soil consists of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil
particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. Such soils are common in the Piedmont plains such as the Duras, Chos and Terai. Apart from the size of the grains or components, soils are also described on the basis of their age. अब soils की भी age होती है और alluvial soil दो हिस्सों में बांटी जाती है, वो है एक old alluvial और new alluvial. old alluvial को क्या बोलते हैं? बंगार. और new alluvial को बोलते हैं खद्दर. जो बंगार soil है वो उसमें कंकड़ के nodules बहुत होते हैं than खद्दर. It has more fine particles and is more fertile than Bangar. Now, जो बंगर सॉइल है उसमें कंकर के नोड्यूल्स बहुत होते हैं और जो खदर है उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं और बहुत फर्टाइल होती है. Alluvial soils as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी का भी काम ज़्यादा हो सकता है और सॉइल बहुत ही अच्छी है तो कल्टीवेशन भी अच्छा होता है. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. अब जो ड्रायर एरियाज में उधर सॉइल बहुत अल्कलाइन होती है पर उसकी भी सॉइल प्रोडक्टिव हो सकती है जब उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इरिगेशन हो. सो वी नो ऑफ एलुवियल सॉइल. उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है आपकी दो टाइप्स की होती है. एक होती है बंगर और एक होती है खद्दर. और फर्टाइल कौन सी होती है? खद्दर. बंगर में बहुत सारे नोड्यूल्स होते हैं. और अगर हम बोले वाई इज़ एलुवियल सॉइल फर्टाइल तो दिस इज़ द आंसर, क्योंकि उसमें बहुत प्रोपोर्शनली से बहुत अच्छा है. और this is also important. They have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. और क्या क्या कंटेन करती है? proportions of silt, sand and clay. और अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली में कौन सी होती है, लोअर रीचेस ऑफ द रिवर वैली में कौन सी होती है, ये सब आपको याद करना है फॉर एलुवियल सॉइल. बल्कि हर सॉइल के लिए आपको कि उसमें क्या क्या लिखा है, उसके क्या क्या पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, सब आपको करना है.